and how did those real early experiences shape the professional you are today? Unusual story because I've been in real estate since the age of 13. That शायद लोहड़ी का दिन था और it was way back in 1995. I was just 15 years old when I cracked my first rental deal. यार मैं पिछले 5 साल में स्पेशली देखे जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ गए, RRTS आ गया, आपका UER आ गया, आपकी इंटरकनेक्टिविटी ऐसी होगी कि you will not believe. I was in Sonipat the other day and I had a meeting at Ambience Leela Gurgaon. So मैंने UER से मेरे ड्राइवर को सिर्फ 40 मिनट लगे वहाँ से सीधा एम्बियंस पहुँचने में. So this is what this is connectivity. This is making the world smaller for you. So this is what is making this industry grow and prosper. इसके अंदर कभी लीन टाइम नहीं आएगा. आपकी डिमांड सप्लाई, आपकी रेट्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होना, इट इज मार्केट डिपेंडेंट, लेकिन कभी इस इंडस्ट्री में लीन टाइम नहीं आएगा बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस. Namaskar and welcome to the Narey Power Voices, the first series in the chilly December in Gurgaon, where square feet meet sharp minds and leadership stories go far beyond site visits and spreadsheets. This is the space where we unpack real journeys, the wins, the lessons, the pivots, and the decisions that quietly shape the future of real estate. Today, we are joined by someone who doesn't just talk about growth, they have lived, led it, and helped others grow along the way. An industry leader, a trusted mentor, and one of our esteemed NAREP Advisory Council members. Please welcome Mr. Siddharth Katyal, CEO of Bhumika Reality. Sir, welcome. Namaskar. Thank you, Rima. Thank you. And thank you for being here. So sit back, Pleasure. tune in, and get ready for the insights that are practical, powerful, and refreshingly real. So we start at the beginning, before the boardroom strategies and success stories. Sir, I would like to ask you, what first inspired you to step into this industry, and how did those real early experiences shape the professional you are today? Well, it's a very unusual story because I've been in real estate since the age of 13, practically speaking. Lovely. Till my father was in real estate. So he was a local developer in the West Delhi area. And I used to see how he used to work, how he used to make calls, how he used to talk to people. Lovely. And investors. And in fact, you will not believe, I still remember that शायद लोहड़ी का दिन था और it was way back in 1995. I was just 15 years old when I cracked my first rental deal. तो मैंने एक आपने कॉलेज का नाम सुना होगा, पीटी सचदेवा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. very much. तो वहाँ के एक प्रोफेसर हुआ करते थे, तो उनको पहला फ्लैट मैंने रेंट पे चढ़वाया था. तो उसकी फर्स्ट कमीशन मुझे आई तो आई फेल्ट सो प्राउड कि टुडे आई हैव स्टार्टेड अर्निंग एंड डूइंग समथिंग. देन विद टाइम पास हैज द टाइम पास्ट, तो धीरे धीरे मैं भी साथ ट्रेन होता चला गया. एंड जब ग्रेजुएशन के बाद IMT से MBA करने के बाद, देन व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर विद अ कैंपस प्लेसमेंट इन EFS Schemberg, Germany. So I went for industrial training to Zurich for 3 months. लेकिन वापस आया, there was something which was missing or lacking. तो I got in touch with somebody who told कि तेरे जैसे प्रोफेशनल की जरूरत जो है वो रियल एस्टेट में ज्यादा है. Very true. एंड मैं रियल एस्टेट में क्योंकि इतनी छोटी उम्र से अपने फादर के साथ कर ही रहा था, तो मेरा भी इंक्लिनेशन था. बट व्हेन आई एंटर्ड इनटू द इंडस्ट्री, सो आई फाउंड दैट पीपल आर selling organized products but in a very unorganized way. एंड उसके अंदर मुझे ये देखने को मिला कि लोगों के अंदर इंटेंट है, इंटरेस्ट है, नई तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, नई तरह की रियल एस्टेट ऑफरिंग्स आ रही है बाजार में. इनफैक्ट व्हेन आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड इन 2007, नया एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था मार्केट के अंदर विच वाज नोन एज ITES ऑफिस स्पेसेस. तो लोगों को पता भी नहीं था कि IT के बारे में तो लोग जानते थे, लोग यही नहीं जानते थे कि ITES क्या होता है. True. तो एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में लोगों को समझाना पड़ता था कि कोई भी काम जो मिनिमम 5 कंप्यूटर की मदद से कर सकते हो, उसको आप इंटरनेट एनेबल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज में कर सकते हो. सो इट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट. उसके लिए पहली बार मैंने एक PPT तैयार की. सो आई स्टिल रिमेंबर माय फर्स्ट conference that we did of the real estate channel partners was in Hotel Connaught in 2007.
तो जिसके अंदर all the, I will not name anybody, but all the big players of the industry today who were very small at that point of time, they attended that seminar and they got exposed to a new kind of a real estate offering, और real estate PPT पे भी बिक सकता है या इंट्रोड्यूस हो सकता है या उसकी अवेयरनेस क्रिएट हो सकती है। Very nice. उससे पहले लोगों को ये लगता था कि अगर आप एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आप चैनल पार्टनर्स की एक पार्टी बुलाइए या 5-7 आप सेल्स के प्रोफेशनल्स को रखिए True, sir. और उनको आप धीरे धीरे सारे चैनल पार्टनर्स के यहाँ भेजिए, वो वहाँ जाके एजुकेट करेंगे और जाके उनसे बिजनेस लेंगे। तो दिस इज नॉट द प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग इन अ रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जी. बिकॉज इंडिया इज आज जो मुझे लगता है कि इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के बाद उसका जो बेस लाइन है या जो उसकी स्पाइन है, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। True. क्योंकि वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी एंड वी इंटेंड टू बिकम अ डेवलप्ड इकोनॉमी एंड वी आर वेरी नियर टू Near इट। to it. True, sir. और जब हम उससे इतने नियर आ गए हैं तो द बेस ऑफ एनी economy, for being a developed economy, you take example of US, you take example of China, you take of any developed European country, it is the infrastructure. True. क्योंकि अगर आपके यहाँ पे डेवलपमेंट आनी है तो उस आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल स्टैंडर्ड का होना बहुत जरूरी है। Absolutely. अगर वो एक्सपोजर आपके पास होगा तभी आप एंटाइज कर सकते हो वर्ल्ड, और आप एक मैग्नेट बन सकते हो टू बिकम अ वर्ल्ड मार्केट। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी इंटाइसिंग। तो मुझे लगा कि इसको अगर सही ढंग से अवेयर किया जाए, सही ढंग से इसको प्रोफेशनल तरीके से किया जाए, एक माइंडसेट, एक मेंटालिटी को तोड़ा जाए कि रियल एस्टेट का मतलब ये नहीं है कि एक डेवलपर है और एक सफेद पैंट और शर्ट पहना हुआ एक प्रॉपर्टी डीलर है जी. जो कि 6-7 चेनें पहनी होंगी उसने, व्हाइट कलर के शूज पहने होंगे True, और true. वो आपको दिखाएगा। रियल एस्टेट कैन बी सोल्ड थ्रू प्रोफेशनल्स because this actually contributes a major part to your economy, to the revenue of the economy. Absolutely. जितना अमाउंट ऑफ मनी रियल एस्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में आज की डेट में गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, आज आप जिस मेट्रो में बैठे हैं, हम दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर, आगे एक्सटेंडेड एनसीआर में पिछले 5 साल में स्पेशली देखे जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ गए, आरटीएस आ गया, आपका यूईआर आ गया, आपकी इंटरकनेक्टिविटी ऐसी हो गई कि यू विल नॉट बिलीव, आई वाज इन सोनीपत द अदर डे एंड आई हैड अ मीटिंग एट एम्बियंस लीला गुड़गांव। UER. सो मैंने यूईआर से मेरे ड्राइवर को सिर्फ 40 मिनट लगे वहां से सीधा एम्बियंस पहुंचने में। सो दिस इज How व्हाट lovely is that? this is connectivity. This is बिल्कुल, making the world बिल्कुल. smaller for you. So अगर आप इतनी अच्छी कनेक्टिविटी देते हैं और इतनी अच्छी कनेक्टिविटी आपकी इंफ्रा प्लानिंग गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है, तो रियल एस्टेट इज सपोज टू बूम। आज हम सेल्स फोर्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स, बोर्ड रूम्स के अंदर रियल एस्टेट डिस्कस करते हैं, Very true. आज हम चार्ट्स बनाते हैं, आज हम जी, फाइनेंशियल प्लानिंग करते जी, हैं, जी, बजटिंग जी, करते हैं। जी. तो ये चीजें आज से 10 साल या 15 साल पुरानी आप अगर होराइजन में जाओगे तो आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगी, बिकॉज इट वॉज वेरी कन्वेंशनल। आज मुझे लगता है सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितने यंगस्टर्स या जितने नए एस्पिरेंट्स हैं, आज रियल एस्टेट के कोर्सेज इंट्रोड्यूस हो गए हैं बिल्कुल सर. सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर। Absolutely. तो आज जितने भी प्रोफेशनल्स निकल के आ रहे हैं नए, जो पढ़ाई करके आ रहे हैं, हमने तो एक्सपीरियंस से सीखा, बिल्कुल. क्योंकि हमारे टाइम पे कन्वेंशनल एमबीए कोर्सेज थे। आप मार्केटिंग करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस में जाएंगे, आप एचआर करेंगे, आप फाइनेंस करेंगे। आज रियल एस्टेट के कोर्सेज आ गए हैं, तो इसका मतलब इट हैज बिकम अ नॉलेज बैंक। इट इज एंटाइसिंग पीपल एंड इज अट्रैक्टिंग देम टुवर्ड्स दिस इंडस्ट्री। True, और sir. आने वाले 20 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम है। क्योंकि जिस स्पेस पे इंडिया आज ग्रो कर रही है, जो हमारी जीडीपी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, जी. जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनता चला जाएगा, आपकी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट इनफैक्ट उतनी बढ़ती चली जाएगी। इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में आज एक ही कमी है कि वी आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ इंडस्ट्री। रियल एस्टेट को अभी इंडस्ट्री की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, लेकिन जिस स्पेस पे हम लोग बढ़ रहे हैं, जिस तरह के रेगुलेशंस आ रहे हैं, रेगुलेटर्स आ गए हैं, मुझे लगता है कि आप जल्दी देखेंगे कि गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसा रिफॉर्म लेके आएगी कि दिस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडस्ट्री एंड देयर विल बी मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज व्हिच विल बी क्रिएटेड, मोर काइंड ऑफ वर्टिकल्स दैट विल बी क्रिएटेड। आज वो कन्वेंशनल रिटेल, रेजिडेंशियल और आपका हॉस्पिटैलिटी में आप रिस्ट्रिक्ट नहीं रह जाएंगे। देयर आर सो मेनी न्यू एवेन्यूज एंड वर्टिकल्स व्हिच आर ओपनिंग नाउ। True, sir. Very सो दिस इज व्हाट एंटाइस्ड मी टू रियल एस्टेट। और मेरा करियर जर्नी का ग्राफ भी यही रहा है कि द बेस्ट पार्ट इज कि आप एक इंस्टीट्यूट से सिर्फ एक बेसिक नॉलेज लेके आते हैं,
लेकिन मुझे ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट होने का मौका मिला जिस इंडस्ट्री की वजह से मेरा खुद का नॉलेज भी इंक्रीज हुआ। मैं रोज कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। नए बच्चे आते हैं, नए बिल्कुल सर। यंगस्टर्स आते हैं, वो नए काइंड ऑफ Ideas, नॉलेज लेके आते हैं। yeah. मैं अलग-अलग कंपनीज के प्रोफेशनल से मिलता हूँ, जैसे आपसे मिला, किसी और से मिला। वो अपनी कंपनी का एक्सपीरियंस लेके आते हैं। बिल्कुल उनके सर। यहाँ पे वर्क कल्चर क्या चल रहा है, True, उनके यहाँ true. एथोस क्या है, उनके यहाँ पॉलिसीज क्या चल रही हैं। तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और क्या कन्वेंशनल में पुराना था, क्या चीजें थी जो गलत हो रही थी, कौन सी ऐसी गलतियां थी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी समझदार आदमी ने और बहुत बड़े रियल एस्टेट डेवलपर है, इनफैक्ट नॉर्थ इंडिया के टॉप 3 डेवलपर्स में आते हैं, तो उनसे एक दिन बैठ के कन्वर्सेशन हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बोली कि सिद्धार्थ, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में नहीं, कहीं पे भी एक चीज़ तेरे को हमेशा नॉलेज दूंगा कि ये याद रखियो, तो उसके बाद कभी फेल नहीं होगा। मैं कहा बताइए क्या? तो कह रहा है कि आप कहीं भी काम कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, वहाँ पे 1000 कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं, जो आप दूसरों को करते हुए देखते हो, या आपने खुद अपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस में किए हैं, उनके ऊपर ध्यान रखो कि बिल्कुल। मुझे ये नहीं करना। आप इस पे ध्यान मत रखो कि व्हाट इज द न्यू स्ट्रैटेजी दैट आई विल डेवलप। True. सिर्फ आप वो 1000 गलतियां नहीं करोगे, तो हम्म। आप सही तो अपने आप कर लोगे। बिल्कुल सर। सो फॉलो द बेसिक्स, और बेसिक्स को फॉलो करके जो यहाँ तक पहुंचे, तो मुझे लगता है कि इट इज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी, एंड दिस इंडस्ट्री specifically gives you the opportunity to be in and around people, because this is the basic need and pulse of the people, whether it is in form of a necessity, an investment, or a sense of pride. True. आदमी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करता है। एक बच्चा आज MBA करके आता है, आज हमारे यहाँ पे पैकेजेस इतने बढ़ गए, तो उन पैकेजेस के अंदर 60-70 हज़ार 90 हज़ार रुपए से तो आज मिनिमम मेरे हिसाब से कॉलेज रिक्रूटमेंट पैकेजेस भी शुरू हो जाते हैं। तो वो इनिशियली आज ट्यून्ड हो गया है कि ही इज मोर वर्क फोकस्ड, प्रोफेशन की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो गए बच्चे। तो उनको ये लगता है कि हम कुछ पार्ट अपना सेविंग में डालें इनिशियली इन सच लेवल्स कि हम थोड़ा थोड़ा सेव कर पाए। लेकिन अगर आप किसी भी हमारी इंडियन माइंडसेट या मेंटालिटी को देखेंगे, तो अल्टीमेटली ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स व्हेन अक्यूमुलेटेड इन अ लार्ज फॉर्म लीड्स टू अ टेंजिबल इन्वेस्टमेंट। True. तो वो यहाँ तो जमीन खरीदेगा, या फ्लैट खरीदेगा, या कोई कमर्शियल Commercial, एस्टेब्लिशमेंट yes, में बिल्कुल। कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। True, sir. तो अल्टीमेट उसकी हर तरह की, आप बैंक में FD भी करा लेंगे, सोना भी खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे करके अलग फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करके एक बल्क अमाउंट इतना इकट्ठा करना चाहते हैं कि मैं कुछ फिजिकल खरीद लूं। True. माँ बाप चाहेंगे बच्चों के लिए कुछ ले ले, बच्चे चाहेंगे कि माँ बाप का है हम अपना भी कुछ बना लें। सो इट इज अ माइंडसेट, इट इज अ इंडियन माइंडसेट, True, एंड sir. दिस इज द बेस्ट पार्ट के विच इज नेवर एंडिंग। ये हमें बचपन से सिखाया गया है, It's embedded somewhere. ये हमें सिखाया गया है। इट्स इन अ माइंड दैट वी हैव टू सेव फॉर द नेक्स्ट 3 generations. So this is what is making this industry grow and prosper. और इसके अंदर कभी लीन टाइम नहीं आएगा। आपकी डिमांड सप्लाई, आपकी रेट्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होना, इट इज मार्केट डिपेंडेंट, लेकिन कभी इस इंडस्ट्री में लीन टाइम नहीं आएगा, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बेस। थैंक यू, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और सर जैसे आपने बोला ना, तो बोलते हैं ना हर इंसान आपकी लाइफ में आता है, सो इधर दे कैन बी अ लर्निंग और इट कैन बी अ ब्लेसिंग। यस, एंड आई ऑल्सो पर्सनली बिलीव वी मीट सो मेनी पीपल। तो मैं भी बोलती हूँ हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। कोई ये सिखाता है आपको क्या करना है, और शायद कोई ये सिखाता है कि नहीं हमें क्या नहीं करना, बिकॉज दैट आल्सो इज अ लर्निंग। रीमा, मैं हमेशा एक चीज मानता हूँ कि मीटिंग अ पर्सन और इंटरेक्टिंग विद अ पर्सन डज नॉट गिव यू नॉलेज, इट गिव्स यू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंसेस, ट्रू। तो वो एक्सपीरियंस गुड एंड बैड आपकी सिचुएशन और आपकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से। बिल्कुल। तो अगर आप उस थॉट प्रोसेस और उस एक्सपीरियंस से अपने हिसाब से उसकी वाइटलिटी को निकाल लेंगे, तो आपको वो प्रोडक्टिव ही मिलेगा। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो किसी भी के अंदर 100% सही चीजें नहीं हो सकती। मेरे अंदर भी 10 कमियां होंगी, आपके अंदर भी 10 कमियां होंगी, बट एज अ ट्रू प्रोफेशनल, या लीडरशिप क्या है? Leadership is all about taking the positives of a person. When you're working with a person, you are working in a very reputed organization. You have peers, you have colleagues. I am working in a reputed organization. I have peers, I have colleagues. मेरे अंदर भी कुछ ऐसे वीक पॉइंट्स होंगे, सामने वाले के अंदर भी वीक पॉइंट्स होंगे। तो MBA में तो सबसे पहली चीज क्या सिखाई जाती है? SWOT एनालिसिस। व्हाट इज SWOT? कि अगर आप सामने वाले की S से मतलब रखें जी, और उसका WOT छोड़ दें,
उसकी ना वीकनेस देखें, ना उसमें अपॉर्चुनिटी देखें, ना उसमें थ्रेट Threat देखें, देखें। सिर्फ आप उसकी जो स्ट्रेंथ है उस जी, पे फोकस जी, करें। जी, तो जी। सोचिए 10 लोगों की स्ट्रेंथ मिलके क्या कर सकती है। So true, sir. सो मेरे हिसाब से स्वॉट में से हमेशा वॉट को निकाल देना चाहिए। That's a learning for me. I will also try and implement it. Thank you, sir. Sir, कोई ऐसी defining there's an हम बोलते हैं ना एक aha, it's an aha moment, or perhaps a tough lesson early in your career that truly shaped you as a leader. Well, it was very challenging for me because I came from a professional background, MBA करके आया, और जब मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कूदा तो मुझे वही कन्वेंशनल ब्रोकर्स, वही जैसे मैंने बताया जी, स्टीरियोटाइप जी, काम जी, करने का जी, तरीका, जी। और वो मिला। आई वांटेड टू इनोवेट एंड डू समथिंग न्यू, New. और वो न्यू करने का तरीका सिर्फ ये था कि टू गेट फ्रेश टैलेंट विच आर नॉट बिलोंगिंग टू द रियल Real एस्टेट estate. इंडस्ट्री। True. मैंने इंश्योरेंस से लोग उठाए, मैंने बैंका के Banking. लोग उठाए, मैंने कासा में काम करने वाले लोग उठाए, मैंने टाइट चैनल के लोग उठाए, मैंने वो लोग उठाए जिनके अंदर खून में, ब्लड में 24 घंटे सेल्स भरा हुआ है। मुझे किसी एक जानकार ने एक बार बोला कि इंश्योरेंस बेचना दुनिया का सबसे टफ काम है। तो आप किसी को अगर इंश्योरेंस बेच सकते हो या किसी को पॉलिसी बेच सकते हो, कुछ भी तो वो आप कुछ भी बेच सकते हो। व्हाई? बिकॉज दे आर ट्रेन्ड वेल। उनको उस प्रोडक्ट की ही नहीं, उसको कस्टमर से कैसे डील करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कि कैसे एटिकेट से बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म दैट एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर, द डिलाइट मोमेंट, द वाव मोमेंट। True. जब मैं आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन वी वर इन आवर टीन्स, तो कॉल सेंटर्स का बहुत बोलबाला था। जी, तो वहां जी। पे आपकी वॉइस एंड एक्सेंट एंड जी, क्वालिटी ट्रेनिंग कराई quality जाती training. थी। True, sir. तो उसके अंदर आपकी जो सबसे पहली ट्रेनिंग होती थी उसको कहते थे मॉम। तो मॉम का मतलब मदर नहीं, मॉम का मतलब मोमेंट्स ऑफ मैजिक। So in those moments of magic, you are actually taught that how can you create a delight for a person, and it is more difficult to create a delight on phone Over the call, of course. where your physical gestures are not going, where you are not, he is not able to actually see you. that what you really want to communicate. So your voice becomes your actual command. तो आपकी वॉइस को ही आपको अपना फिजिकल जेस्चर बनाना है, उसी से आपको अपनी सारी चीजें कम्युनिकेट करनी है, एंड यू हैव टू गिव अ मोमेंट ऑफ डिलाइट टू अ पर्सन। True, sir. तो अगर आपने वो डिलाइट फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर ली, विच इज इजियर, सो हाउ डिलाइटफुल एंड हाउ प्रोफेशनल द एंटायर इंडस्ट्री कैन बिकम। सो इट वाज अ चैलेंजिंग फेज फॉर मी, क्योंकि इनिशियल जब हम लोग ट्रेनिंग सेशंस ये पहले खुद हमने लिए, लेने के बाद सीखा, सीखने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने के बाद ये देखा कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे, एंड द रिजल्ट्स वर phenomenal, I'm sure. and we were not able only to cater to the local market. इस approach की वजह से we were able to enter into tier 2 and tier 3 cities also. So your actual market of your product which you are selling in Delhi NCR had a wider vision of market all around North India, because you changed the definition of the product के मैं आपको दिल्ली एनसीआर का प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मैं आपको एक वैल्यूड इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूँ, which can be a feel factor for you, which can be a lucrative investment for you, which can be an asset for your upcoming generations who want to migrate from a 2-tier or a 3-tier city to a metro city. क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आप गांव से शहर आना चाहेंगे, शहर से आप मेट्रो सिटी में जाना चाहेंगे, मेट्रो सिटी वाला विदेश जाना चाहेगा। Absolutely. So migration is always happening and it is a constant process. True. Even to the level of Ambani, they also migrate. अगर आप अंबानी और अदानी भी हो जाओगे तो भी आप माइग्रेट करोगे, because there is always a next level theory, जिसको आप MBA में Maslow's theory बोलते हो। बिल्कुल सर। तो There are different needs. There are different needs and desires. तो वो कभी खत्म नहीं होती, वो कोई ना कोई फॉर्म में नई आती चली जाती है। So I think that is a wow moment for me, and that was something which was very critical, and I am very fortunate that I was among the few जो उस समय काम कर रहे थे, जिन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझा और देखा और उसको उस इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा, नए तरह के कन्वेंशनल रियल एस्टेट प्रोडक्ट्स को फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हुए देखा, फिर उसकी एक्सप्लेनेशंस को जाते हुए देखा, उसकी अवेयरनेस क्रिएट होते हुए देखा। आज तो इट इज अ स्टोरी, टुडे एवरीबॉडी इज डूइंग द सेम थिंग। ट्रू सर, वेरी ट्रू। सो दैट वाज द मोमेंट आई सपोज। थैंक यू सो मच। इट takes me also when I started my first internship, so that was also in IBM,
and then वहाँ पर so same voice and accent training and all. It was very it was very So I was also in mesmerizing. IBM Daksh. So I was also there. Oh, the world is too small. So then, yes, I remember the training. So and, I was in the pilot batch of Intuit and QuickBooks and Acha, TurboTax. I was with Delta Airlines. Nice, very nice. But yeah, sir, that the kind of training, I mean, we took at that time, that has really helped us now, in accent neutralization. बड़ी सारी चीजें जो सिखाते थे. In fact, कोई ऐसा इंसान जो जिसको स्टेज फेयर इतना है और जो बोल नहीं सकता, the way I they think teach. रीमा आज बच्चे आज जो जेनजी हैं जी, या जो जी. हमसे 5 साल 10 साल एज में छोटे होंगे, हाँ जी. they are much more exposed to a lot of information which is available. True, It is up to them what kind of information they want to they want to absorb. take and what kind of knowledge bag they want to create. True, true. क्योंकि आज एक्सपोजर इतना ज्यादा है, they are much more well versed. आपके बच्चे भी घर पे होंगे, मेरे भी होंगे, वो कहते हैं पापा आपको कुछ नहीं पता, हमें आपसे ज्यादा पता है. So they know it more. They know it well. Why? Because they are already exposed. हमारे सामने वो चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही थी. They are in a age where it is almost Already transformed. So yeah. the awareness is already there. Already there. We were supposed to get that awareness. So that had its own charm. This has its own charm. True, तो true. दोनों चीजों के साथ आपको बैलेंस होके चलना पड़ेगा. बिल्कुल, बिल्कुल. Thank you so much. Then across organizations today, what common gaps or blind spots do you often notice? The things leaders should be paying more attention to. I think if you talk in terms of real estate industry or in general? In general, sir. In general, मुझे लगता है कि organizations and leaders have to be more innovative, more secure towards their positions. Yes. Insecurity छोड़नी पड़ेगी. बिल्कुल. ये बहुत जरूरी है. True, क्योंकि if you want to become a leader, you have to groom leaders. As a in a general perspective अगर मैं बात करूं, क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, लीडर बनना बहुत आसान है. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर सकते हो. आप के नीचे हो सकता है 1000 लोगों की वर्कफोर्स काम कर रही हो, टॉप प्रोफेशनल्स काम कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक फियर रहता है, एक इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर मैंने इसको ग्रूम कर दिया, ये मुझसे आगे निकल गया, अगर ये आउटशाइन कर गया तो मुझे कौन पूछेगा. बिल्कुल. दिस इज नॉट अ जॉब ऑफ अ लीडर. अ ट्रू लीडर ऑलवेज हैज टू क्रिएट more leaders and make sure that they outshine you. That's the real pride. That's the real pride. Yes. If you are not able to create leaders who outshine you, then you are not in the leadership. True. Leaders का काम leaders create करना नहीं है. Leaders का काम उनको outshine कराना है. जब आपने नए लीडर्स को आउटशाइन कराया, then you become the kingmaker. True, sir. So 99.9% leaders just remain leaders. They don't become the kingmakers. And it is very important to become a kingmaker. क्योंकि जब आप kingmaker बनोगे, तब आप आउटशाइन होगे. बिल्कुल. Then you have the absolute control and power जिसके लिए leadership की भूख है. बिल्कुल सर. हर आदमी a good leader, it's not. एक और बहुत interesting बात इसमें बताऊंगा. They always say that a leader is a person who has a lot of followers, but leader is the weakest person in the world. It is a follower can become a good leader, but it is not necessary that a leader is also a good follower. True, very true. तो कईयों को ज्ञान बांटने की बहुत आदत होती है, लेकिन ज्ञान लेने की आदत नहीं होती. तो ज्ञान बांटना और ज्ञान लेने में बहुत बड़ा फर्क है. Plus, what I feel is that you have to stop being stereotyped. आप अगर जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, you should not only observe what goods others are doing, you should also observe the mistakes that people are doing. Like if you talk about real estate industry today, आज अगर हमारे यहाँ तो नॉर्थ इंडिया में तो स्पेशली अगर अब बात करें तो लहर चलती है कि अब रेजिडेंशियल की लहर आ गई, अब कमर्शियल की लहर आ गई, अब बड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स की लहर आ गई, अब अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स की लहर आ गई, अब ऊपर लग्जरी की लहर आ गई. बट पीपल डू नॉट फोकस एज टू द नीड ऑफ द कस्टमर. यू आर डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन भेड़ चाल. कि अगर एक आदमी ने ये प्रोडक्ट निकाल दिया मार्केट में, उसकी हाइप क्रिएट होगी, तो लेट अस आल्सो डू द सेम थिंग. हाउ मेनी लीडर्स एक्चुअली गो इन फॉर अ डीप स्टडी एज टू व्हाट अ पर्टिकुलर मार्केट इन विच यू प्लान टू ब्रिंग योर प्रोजेक्ट
वहां की जनता चाहती क्या है टारगेट भाई? ऑडियंस आपकी आपकी बिल्कुल टारगेट ऑडियंस ऑडियंस चाहती क्या है? चाहती क्या जनता की रिक्वायरमेंट क्या है? आई रिमेम्बर व्हेन वी वर ब्रिंगिंग आवर फर्स्ट फ्लैगशिप प्रोजेक्ट इन फरीदाबाद of Bhumika Reality, which we have just got RERA. It's by the name of The Icon. तो इसको लॉन्च हमने 4 दिन या 5 दिन पहले ही किया होगा, लेकिन इसकी डीप स्टडी हम पिछले 1 साल 1.5 साल से कर रहे आई हैं। एम श्योर और 1 साल 1.5 साल से हमारी पूरी जो स्टडी है वो ऑल अक्रॉस है कि आई एम क्रिएटिंग अ मल्टी यूज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके अंदर मैं होटल भी लाऊंगा, मैं इसके अंदर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी लेके आऊंगा, मैं इसके अंदर रिटेल का सेक्टर भी लेके आऊंगा। लेकिन व्हाट इज द काइंड ऑफ रिटेल दैट आई हैव टू क्रिएट ओवर देयर? ट्रू वहां की जनता की रिक्वायरमेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई विल नॉट बी स्पेसिफिक अबाउट माई प्रोजेक्ट बिकॉज दिस इज अ जनरल कन्वर्सेशन, सो इट विल लुक लाइक मैं भूमिका की ब्रांडिंग कर रहा हूँ। आप उसमें एक चीज देखें, उस स्टडी के अंदर हमने एक चीज को की पल्स समझने की कोशिश की कि अगर मैं एक रिटेल सेंटर लेके आ रहा हूँ, फरीदाबाद के अंदर लेके आ रहा हूँ, तो फरीदाबाद के अंदर वहां के लोग शॉपिंग करने जा कहाँ रहे हैं? परचेजिंग पावर भी है, खरीदते भी हैं, महंगी गाड़ियां भी यूज कर रहे हैं, एक ओल्ड विंटेज इंडस्ट्रियल टाउन होने की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट भी वहां रह रहे हैं, ट्रू और आसपास का बेल्ट जो है वो रिच भी बहुत है। पूरी इंटरकनेक्टिविटी आज बॉम्बे कॉरिडोर, आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, आरआरटीएस, हर चीज केएमपी, हर चीज से इंटरकनेक्टेड होने के बावजूद भी वो शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं? तो पता चला कि या तो वो साउथ दिल्ली जाते हैं या वो नोएडा जाते हैं। व्हाई? बिकॉज द सेंटर्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल ओवर देयर वर बॉक्स डेवलपमेंट्स। ऐसा नहीं है कि फरीदाबाद में मॉल्स नहीं है या अच्छे डेवलपर्स काम नहीं कर रहे, बट दे वर नॉट गेटिंग द एक्स फैक्टर जिसके लिए उनको जाना है साउथ दिल्ली है, उनको जाना है नोएडा। आपका फरीदाबाद का कस्टमर ऑल द वे गुड़गांव नहीं आएगा, वो अपनी पेरिफेरी के 5 से 7-8 किलोमीटर की पेरिफेरी में ही जाएगा। बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एज अ लीडर और एज अ विजनरी लोग आज रिटेल एक्सपीरियंस को इस तरह से लेते हैं कि हमने जी मॉल बना दिया। टुडे मॉल इज नॉट अ मॉल। I'm not talking from perspective of a real estate industry. मैं आपको एक लीडर की विजन कैसे होनी चाहिए, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। You have to consider and take into account that you have to create an experience center which should have the masala to hold your customer for at least 3 to 4 hours. True sir, very true. आप अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हो, एंड बच्चों के साथ जा सकते हो। सिर्फ गाड़ी में जब तक बैठ के आप इकट्ठे जा रहे हो तब तक आप इकट्ठे हो। जैसे ही आप उस सेंटर के अंदर एंटर करते हो तो योर थॉट प्रोसेस, योर टेस्ट, योर स्पेंडिंग फिनोमिना, योर आइडिया ऑफ एंटरटेनमेंट इज टोटली डिफरेंट। हस्बैंड को बियर पीनी है, वाइफ को शॉपिंग करनी है, बच्चों को एंटरटेनमेंट जोन में जाना है, तो सब अलग अलग है। बिल्कुल। इकट्ठे कब होंगे कि इकट्ठे बैठ के कोई पिक्चर देख रहे हैं या हमारा इकट्ठे अब खाने का टाइम हो गया। yes. So the experience has to be on an individual basis today. So this is the responsibility of the leader or a visionary to introspect into that deep level. Deep level, true, true. जिसको आप कहते हैं कि दूसरे के जूते में घुस के देखो। Step inside the shoes of a customer. कि आप अपने फैमिली के साथ अगर आप जाते हो तो आप क्या क्या एस्पायर करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी एस्पिरेशन लेवल हो सकता है एज अ डेवलपर थोड़ी सी ज्यादा होगी, so but you have to understand and you have to create that aspiration level of every level. True sir. So this is the kind of thing that is required. जैसे शुरू में जब कुछ मॉल्स बने तो सोचा ही नहीं कि पार्किंग भी चाहिए। आई एम श्योर you'll agree with me, है ना? मॉल्स की लोकेशन बहुत अच्छी है, अंदर सब कुछ है, बट पार्किंग ही नहीं है, तो यू नो पीपल वेयर वुड देखिए, मैं हमेशा एक चीज पे बिलीव करता हूँ, डेवलपर्स शुड वर्क on utilization of spaces rather than efficiency of the spaces. आप सिर्फ शॉपिंग मॉल की बात क्या कर रहे हैं, आप किसी भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को देख लें, आप किसी भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप को देख लें, आप किसी भी शॉपिंग सेंटर को देख लें, आप हाई स्ट्रीट को देख लें, जहां पे भी एफिशिएंसी पे ध्यान दिया गया है, यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस पे ध्यान दिया गया है, दो सेंटर्स आर सक्सेसफुली रनिंग वेल। और अगर आप वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप मोर एरिया निकालने पे ध्यान देते हो या कुकी कटिंग पे ध्यान देते हो, वहां पे आपकी वो कॉम्प्लेक्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी में फॉल करता हो, इट इज नॉट वर्किंग वेल, बिकॉज अल्टीमेटली द प्रोडक्ट विच इज सपोज टू बी यूज्ड बाय द एंड कस्टमर or the person who is visiting that place, True. if it is not usable for him, it will not come. Mall क्या है? Magnet.
आप बार बार एक ही जगह पे क्यों जाओगे जब आपको वहां पे कुछ नया मिलेगा? हाँ. पोस्ट कोविड तो वैसे भी पीपल आर सो बिजी नाउ कि उनको जब फ्राइडे सैटरडे संडे या कभी भी अपनी पूरी फैमिली या अपने लिए टाइम, जिसको आप मी टाइम कहते हो, आज के जेनजी बच्चे कहते हैं जो, तो मी टाइम चाहिए। तो वो मी टाइम के लिए जब वो जाएगा, सो ही नीड्स दैट स्पेस वेयर ही कैन रिलैक्स, एंजॉय एंड स्पेंड द टाइम इन अ वैल्यूएबल मैनर। आज आपकी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, आपकी हर चीज चेंज हो गई है। आप अगर आज रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लेने जाओगे तो आप सिर्फ अपनी पॉकेट साइज ही नहीं देखोगे, आपको वैल्यू फॉर मनी चाहिए, वैल्यू इंजीनियरिंग चाहिए कि भैया मेरे बजट में मुझे सारे एस्थेटिक्स चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो मर्सिडीज गाड़ी में जो फीचर है वही एमजी में नहीं होते। सो कंपनीज हैव आल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि मुझे हर बजट के आदमी के लिए फीचर्स क्रिएट करने हैं। हो सकता है क्वालिटी ऑफ फीचर्स में फर्क हो, बट आज पूरा आपका बाइंग पैटर्न, आपकी रिक्वायरमेंट, हर चीज चेंज हो चुकी है। सो गुड लीडरशिप इज नॉट ओनली लीडरशिप, इट इज विजनरी लीडरशिप। कि आप अगर उस विजन को लेके चलोगे, लोगों को साथ लेके चलोगे, उनको ग्रो कराओगे, उनको इनकलकेट कराओगे, उनको वो नॉलेज दोगे, वो नॉलेज आपके ऊपर ही वापस आएगी रिपल इफेक्ट होके, बिकॉज दे आर मच मोर एडवांस देन यू। आप अगर किसी फॉलोअर को लीडर बना रहे हो तो वो जो लेटेस्ट फ्रेश नॉलेज बैंक लेके आ रहा है वो आपको इम्पार्ट करेगा। सो अल्टीमेटली भला आपका हो रहा है एज ए लीडर। बिल्कुल ट्रू। I think our industry really needs leaders like you. No, I think industry needs more mentorship. Yeah, mentors. True. They need mentorship. आप अपने experiences दीजिए, आप अपने experiences को share कीजिए, आप अपने experiences को जब share करेंगे, दिल खोल के share कीजिए, heart out के साथ share कीजिए, connect बनाइए. People should feel comfortable talking to you. बिल्कुल सर. Rather than they feel, अरे यार ये तो leader आ गया, ये तो एक औरा वाला आदमी आ गया, इससे जरा थोड़ा सोच समझ के। दे शुड फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू यू, ओनली देन दे विल शेयर। तो आपको उसके लेवल पे उतरना पड़ेगा, उसके माइंडसेट के लेवल पे उतरना पड़ेगा, देन ही विल बी कंफर्टेबल इन शेयरिंग हिज नॉलेज बैंक विद यू। ट्रू। और सर वो हमने बचपन से कहानी सुनी ना, वो घड़ा भरा और खाली, तो मुझे लगता है हमें घड़ा आधा रखना चाहिए। पूरा घड़ा भरा होगा तो अगर कोई नॉलेज आएगी भी तो वो सब बाहर गिरेगी। देखिए मैं तो एक चीज मानता हूँ कि शायद लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो यू शुड बी लाइक अ ओशियन, जिसमें जितना डाल दो उतना कम है। बिल्कुल। लहरें जब ओशियन की आपके शोर तक आती हैं तो वापस भी जाती है, लेकिन वो शोर तक इसीलिए आती है कि कुछ दे के जाती है तो 10 चीजें लेके भी जाती है। सो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको घड़ा बनना है जिसमें एक लिमिटेड स्कोप हो या आपको ओशियन बनना है। वेरी ट्रू सर। In the world of AI today, how critical are data, technology, and innovation in driving the sustainable growth in real estate industry? I think it is for any industry today. Data is the most critical and important part. आप के हर एनालिसिस में डेटा की ही रिक्वायरमेंट है। इट्स अ डेटा ड्रिवन इंडस्ट्री टुडे। आज जिस तरह की प्रोफेशनलिज्म रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आ गई है, everything is determined by data. पहले क्या होता था कि people used to take projects, उसके बाद वो रेरा वेरा नहीं होता था तो प्री सेल्स में चले जाते थे कि बेचेंगे फिर देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बनाना शुरू करेंगे। टुडे बिकॉज प्रोफेशनल्स हैव स्टार्टेड कमिंग, अच्छे अच्छे MBS से बच्चे आ गए हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट से वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टडी करके आए हैं। सो दे हैव बिकम मोर लॉजिकल, लेट मी पुट इट दिस वे। सो अगर लॉजिकल हो गए हैं तो लॉजिकल होने की वजह से दे रिक्वायर लॉजिकल रीजनिंग फॉर एवरीथिंग। इफ वी आर डूइंग समथिंग, व्हाई वी आर डूइंग इट and why it is to be done in this particular fashion or manner. True. तो उसको एनालाइज करने के लिए या उसको डिटरमाइन करने के लिए आप डेटा इज समथिंग विच इज द मोस्ट क्रिटिकल पीस. You need to take informed decisions, or informed decisions can only be taken when you have data with you. So the entire not for only for real estate industry, अगर आप किसी भी इंडस्ट्री की बात करें तो it has become a data driven industry. आज AI के जमाने में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ कि वी हैव बिकम सो डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी कि आज चैट GPT वगैरह जैसे सॉफ्टवेयर जो है वो आपकी मेल 1 सेकंड में लिख देते हैं, जिसके लिए आपको अपने दिमाग का एप्लीकेशन भी नहीं करना पड़ता. तो बट इट्स इजी, इट्स कन्वीनियंट. Mindfully, if you use it, has its benefits, of course. It has its benefits. If you use it very, very mindfully, but you have to check that also. उसमें भी error आ सकता है. बिल्कुल सर. लेकिन
if you use technology in the right form, in the right fashion, it can help you create wonders. You can take informed decisions. You will जी. take 99% accurate decisions, because 1% is always the scope where you do not know the unforeseen. बिल्कुल. That जो scope of error. आपकी स्कोप ऑफ एरर नहीं कहेंगे, सिचुएशन, हम्म, आपने किसी चीज को एक पर्टिकुलर पैरामीटर में परसीव किया, जी. उसके हिसाब से उसको प्लान किया, स्ट्रेटेजाइज किया, हर चीज किया, मार्केट ने उसके ऊपर कैसे रिस्पॉन्ड किया वो आपके हाथ में नहीं है. True. या कोई सिचुएशन ऐसी आ गई, कोई ऐसा अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हो गया कि आपको अपना पूरा स्टैंस चेंज करना पड़ गया. लेकिन आज डेटा आपको किस तरह से हेल्प करता है एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है. टुडे आई हैव सीन व्हेन वी आर आल्सो वर्किंग इन द ऑफिस टुडे, वी डोंट वर्क ऑन प्लान ए, वी वर्क ऑन प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी. सो दैट बैकअप प्लान is created only because of that data, कि अगर ये नहीं चलेगा तो इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ये नहीं चलेगा तो इसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगे. टेक्नोलॉजी इज मेकिंग इट मच मोर बेटर, बिकॉज हर प्लान का एनालिसिस आपके हाथ में रेडिली अवेलेबल होगा. आज अगर मैं ROI की बात करूं, IRR की बात करूं, या रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं, तो मेरा प्लान ए मुझे हमेशा ये दिखाएगा कि मेरी मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी आएगी. जी. अगर 1 मिनट के लिए प्लान ए पे नहीं जाऊंगा तो मैं अपना रिवर्क करूंगा प्लान, तो उसमें मेरी बी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी. बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एट द बैक ऑफ माई माइंड वो असेसमेंट रहेगी कि ये मेरे 4 सिनेरियोज या 5 सिनेरियोज हैं जिसके अंदर बेस्ट टू वर्स्ट में मैं कहां तक जा सकता हूँ. दैट कैन ओनली बी अचीव्ड व्हेन यू हैव डेटा इन योर हैंड. But that data has to be organized well, it has to be synchronized in the right form, and it has to be analytical, and so much analytical that you know each and every pros and cons of the data that you are utilizing. So more than having data, it is more important how you utilize that Use the data. Utilize the data. True. So information technology, AI, and all these kinds of platforms help you or assist you in analyzing and processing that data in a better form. True, sir. So मुझे तो लगता है अगले 5 साल में लोग कहते हैं कि AI will take jobs. I think it will create more jobs. Yes. Because आप नेगेटिव में क्यों जाते हो कि ह्यूमन का काम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटरफेस करेगा तो ह्यूमन क्या करेगा? अरे आप उसको यूज करो ना. Yes. आप उसको यूज करना सीखो. मैनुअल गाड़ियां चलाते थे, आज ऑटोमेटिक पे आ गए. तो मैनुअल गाड़ियों से ऑटोमेटिक पे आ गए, तो क्या आप ऑटोमेटिक गाड़ियों के डिपेंडेंट हो गए? इट इज गिविंग यू कन्वीनियंस. Convenience, yes. So if you are not using technology for convenience and you are seeing it as a threat, then it is your problem, not the technology's problem. True, sir. Absolutely. I agree completely. तो ये फर्क है. जी. Sir, as a member of NAREP Advisory Council, what excites you most about being a part of this growing and dynamic community? Well, I'll be very candid about it and very honest about it. National Association of Real Estate Professionals. So this particular word only enticed me to become a member of it. I saw it for the first time on LinkedIn when somebody became member. So एक दो का मैंने और post देता. तो normally I don't approach anybody. So I asked my team कि यार ये क्या है, जरा पता तो करो. So then they said that somebody is forming, Vipin ji is you and Vishal ji is forming this association, and they are inviting all real estate professionals to be a part of a forum so that they can exchange knowledge, ideas, and create a professional platform wherein you can speak. And plus मुझे बहुत अच्छा लगा, और in fact I was very happy to see that something of this sort is now happening in India, because हमारे यहाँ पे रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स को लेके अभी तक कोई ऐसी एसोसिएशन क्रिएट नहीं हुई थी. और अगर आप अपना खुद का लिंक्डइन स्कोर ही देख लें तो आई थिंक जब आपने शुरू किया था 100 या 200 का लिंक्डइन स्कोर था, आज शायद आप 3000 प्लस हो गए हो. तो अगर इतनी फास्ट रेट से आपके मेंबर्स बढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिकली बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आप कोई एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, इसका मतलब पीपल वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एसोसिएशन. और जब अच्छे अच्छे इंडस्ट्री लीडर्स इसके पार्ट बन रहे हैं, सो दैट मीन्स दैट योर ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग. नाउ इट इज अप टू यू
फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल थ्री ऑफ यू Thank you so कि much, आपने sir. ये शुक्रिया. एसोसिएशन को क्रिएट किया, लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके एथोस ठीक रखिए, जी. आप इसके अंदर और इनोवेटिव चीजें लेके आइए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक्सचेंज फोरम्स करवाइए, इंडस्ट्री लीडर्स को आपस में मिलवाइए, बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म Yes. विच इज कनेक्टिंग यू टू एवरीवन. Everyone. True, sir. आपने जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, एडवाइजरी काउंसिल का शायद अलग बनाया है, जी, नरेप जी, का जी. एक अलग जी, बनाया है. जी. सो मुझे किसी का नंबर चाहिए हो तो वैसे निकालने में मुझे 4 लोगों को फोन करने पड़ेंगे. आज आपने मेरे हाथ में वो हथियार दे दिया, एक टूल दे दिया. True, sir. Yesterday I was seeing somebody Ask for a required number. a number Yes, of yes, yes. some architect or जी, someone, जी, and जी, it जी. was available in a minute. Yes. So this is what is this? This is helping each other out. Assistance. Yeah. This is quick assistance. This is quick assistance. True, true. So if आज अगर एक छोटी सी चीज है, माने तो बहुत एक छोटी चीज है, किसी ने किसी से नंबर मांगा और फोरम में से किसी ने नंबर दे दिया, लेकिन एक भावना आई, एक सेंस ऑफ कोऑपरेशन आया, Yeah. एंड दैट इज द पर्पस ऑफ दिस एसोसिएशन. True. दैट द रियल एस्टेट, ये कोई एसोसिएशन नहीं बन रही कि 4 बिल्डरों के अगेंस्ट जाके कोई नहीं, जाके नहीं, धरनाबाजी नहीं, करेगी. No, no, not ये at एक all. एसोसिएशन है कि we should be there available for each other, To equip each other well. to equip each other, not in the time of happiness also, but in the time of stress Stress also. also. Very true. True, If sir. there is a requirement of a job, if there is an availability of a job, if you want to share some knowledge, you want to take some knowledge, you can reach out to that platform. But engagement is very important. True, sir. तो मेरी तो आपको यही एडवाइस रहेगी, आप इसमें जितना एंगेजमेंट रखेंगे, जितना आप इसमें फोरम को और मजबूत करेंगे, इसको और ज्यादा प्रोफेशनल करेंगे, इसमें सिलेक्शन एंड क्राइटेरिया ऑफ ज्वाइनिंग दी Yes. एसोसिएशन को स्ट्रिंजेंट रखेंगे, जी. so you'll have quality people with you, जी, जी, जी. and that's the basic idea of this Thank you association. so So I much, wish you sir. all the best Thank once you, again. Sir. Thank you. Sir, before a wrap up, we've created some fun element to it. So I can say it's a Narep signature rapid fire for you. I'll ask very quick questions and quick answers. So one word to describe the real estate industry today. Rocket. Lovely. A habit you swear by for your success. Workaholic. Nice. One skill every real estate professional must master in next 5 years. Honesty. Nice. Coffee, tea, or late night strategy sessions. Late night strategy session. I guess so. If not real estate, what other career would you have chosen? Cook. 100% a chef. Chef? Oh, nice. Then I will meet you again. Legacy over luxury, or luxury with legacy. Luxury with legacy. Nice. Last, one book or podcast you would recommend to our young professionals. I would say that everybody should see the podcast of Vijay Mallya, Okay. for the simple reason that there is always the other side of the story, Yes. and Definitely. that doesn't discharge anybody from any wrongdoing or right doing. But one recommendation to all the youngsters is that there are two sides to the coin. जी. So आप किसी का पॉडकास्ट सुने या कोई किताब पढ़ें, जी. आप हमेशा उसके हर चीज के मेरे मेंटर जो हैं, सॉरी मैं उनका नाम नहीं ले सकता, ही इज अ वेरी बिग रियल एस्टेट डेवलपर. जी. उन्होंने मुझे हमेशा एक चीज सिखाई कि किसी भी चीज के 3 पहलू होते हैं. पहला पहलू वो जो आपका है, दूसरा पहलू वो जो सामने वाले का है, तीसरा वो जो दोनों का है, जो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है. सो आपको हमेशा लाइफ के तीनों एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए. तो आप किसी का भी बुक पढ़े या किसी का भी पॉडकास्ट देखें या कुछ भी देखें, तो आपको हमेशा कभी भी उसको वन साइडेड होकर नहीं देखना चाहिए. आपको उसके तीनों पहलुओं को देखना चाहिए, वो जो नजर आ रहा है सामने वाले का, वो जो आपका है, और वो जो आपको नजर ही नहीं आ रहा है. बिल्कुल सर. सो आई होप this is the only thing I can say. Thank you so much. I'll also try and implement this now. So thank you for sharing your time, insights, and experiences with us today, sir. It was an honor. Your journey is not just, impressive, it's inspiring, and we are certain our Narep community will take away invaluable lessons from this experience. It is a pleasure being a part of this society, and thanks a lot for giving me this Dil honor. se shukriya. Thank you so much. Thank you.